بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے دوسرے پارے کا پہلا پاؤ بھی آپ کو سنا دیا تھا، لیکن دوسرے پارے کے شروع میں ایک دو آیتیں میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو 16-17 ماہ تک آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے۔ بار بار اللہ سے التجائیں کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ تو یہودیوں نے باتیں شروع کر دی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا، ان قریب کچھ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ کیا چیز ہے، کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، جس پر پہلے تھے اس کو تبدیل کر لیا۔ اے نبی ان سے کہو، اللہ ہی کی مشرق ہے اور اللہ ہی کی مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے دیتا ہے۔ ہم نے اس قبلے کی تبدیلی صرف اس لیے کی تاکہ ہم دیکھ لیں، جان لیں کہ من یتبع الرسول، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ممن ینقلب علی عقبیہ، اور کون ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ اصل میں یہودیوں کو تکلیف یہ تھی کہ ان کا بھی قبلہ مسجد اقصیٰ تھا، تو مسلمانوں کا بھی وہی تھا۔ جب ان کے قبلے سے ہٹ گئے تو پھر ان کو تکلیف ہوئی۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجہ بھی بیان فرما دی۔ باقی میں نے پہلا پاؤ آپ کو سنا دیا تھا۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی ناراضگی سے، جہنم سے بچ جاؤ۔ چند گنتی کے دن ہیں، اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو جتنی تعداد رہ جائے دوسرے دنوں میں وہ پوری کر لے۔ معلوم ہوا مریض اور سفر میں روزہ نہ رکھ سکے تو اجازت ہے، لیکن دوسرے دنوں میں یہ تعداد پوری کر لے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح دلائل ہیں ہدایت کے، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیزیں ہیں۔ جو بھی اس مہینے میں موجود ہو، یعنی سفر پہ نہ ہو، فَلْيَصُمْ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اور جو بیمار ہو یا سفر پر، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو یہ تعداد دوسری دنوں میں پوری کر لے۔ بے شک اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، تاکہ تم تعداد پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، بالکل ویسے جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تاکہ تم شکر کرو۔ اے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو بتا دو، فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فرمایا، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ مجھ سے ہی دعائیں کریں، پکاریں۔ فَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں جو کچھ دینا ہے بس دنیا میں دے دے،
वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, ऐसे लोगों के लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ए अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें आग के आदाब से बचा। उनके लिए हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। ए ईमान वालो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कुछ इस्लाम और कुछ मुनाफकत, कुछ कुफर और कुछ इस्लाम, ऐसा मत करो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर मत चलो, बेशक ये तुम्हारा वाज़ेह दुश्मन है। तुमने क्या समझ लिया है अन तदखुलुल जन्नता, कि तुम जन्नत में ऐसे ही दाखिल हो जाओगे। लम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन कब्लिकुम, अभी तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो हालात तुमसे पहले लोगों पर आए थे। मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्रा, तकलीफ और तंग दस्ती ने उन्हें छुआ, यानी उन्हें तकलीफ और तंगदस्ती पहुंची। वह जुलजिलू, और हिला के रख दिए गए। हत्ता यक़ूल अर्रसूलु वल्लज़ीना आमनू माअहू मता नसरुल्लाह, यहाँ तक के रसूल भी कह उठा और ईमान वाले भी कह उठे मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्न नसरुल्लाहि करीब, सुन लो अल्लाह की मदद करीब है। ये लोग आपसे पूछते हैं कि क्या खर्च करें, इन्हें बता दो कि जो भी तुम नेकी भलाई में से, खैर में से जो भी तुम खर्च करोगे, सबसे पहले वालिदैन के लिए, फिर करीबी रिश्तेदारों के लिए, फिर यतीमों के लिए, मिसाकीन के लिए और मुसाफिरों के लिए। और याद रखो, जो भी तुम भलाई का काम करोगे अल्लाह को उसके बारे में खूब पता है। ये लोग आपसे ए नबी शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, तो इनको बता दो इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, लोगों के लिए कुछ फ़वाइद भी हैं, लेकिन याद रखें व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा, इन दोनों का गुनाह इनके नफ़े से, फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। तो ये पूछते हैं क्या खर्च करें, कुलिल अफ़्व, इनसे कह दो कि जो भी तुम्हारे पास ज़ायद है वो अल्लाह की राह में खर्च करो। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, अल्लाह इसी तरह तुम्हारे सामने अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम सोचो विचार करो। वला तन्किहुल मुशरिकात, मुशरिका औरतों से निकाह मत करो यहाँ तक कि वो ईमान न ले आएं, और ईमान वाली लौंडी बेहतर है उस मुशरिका औरत से जो मुशरिका है, चाहे वो तुम्हें अच्छी लगती हो। और ना ही अपनी बेटियों के निकाह मुशरिकों से करो यहाँ तक कि वो ईमान ना ले आएं। याद रखो, वो ग़ुलाम जो मोमिन है वो उस मुशरिक से बेहतर है, चाहे वो तुम्हें बहुत अच्छा लगता हो। ये लोग तुम्हें आग की तरफ दावत देते हैं और अल्लाह तुम्हें जन्नत और मग़फ़रत की तरफ बुलाता है अपने हुक्म से। अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि ये लोग नसीहत पकड़ें। ये लोग आपसे ए नबी हैज़ के बारे में पूछते हैं, इनसे कह दो हुवा अज़न, ये गंदगी है। फ़अ्तज़िलुन निसाअ फ़िल महीद, हैज़ के अय्याम में औरतों से अलग रहा करो, उनके करीब मत जाओ। हत्ता यतहुरना, यहाँ तक कि वो पाक हो जाएं। फ़इज़ा ततहरना, देखें दो फेल हैं, यतहुरना इसका माना भी वो पाक हो जाएं और ततहरना इसका माना भी पाक हो जाएं। लेकिन फ़र्क ये है कि ततहरना जिस फेल में ता और शद होती है उस फेल को मुकम्मल एहतमाम के साथ करने का मफ़हूम होता है, यानी जब अच्छी तरह पाक हो जाएं। फ़ातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर जो अल्लाह ने जिस तरीके से तुम्हें हुक्म दिया है फिर उनके पास जाओ। और याद रखो, अल्लाह को तौबा करने वाले और पाक रहने वाले लोग बहुत पसंद हैं। अल्लाह तुम्हारा मुआखज़ा नहीं फरमाएगा। जो तुम कस्में
आदतन खाते हो। बाद लोगों को आदत होती है कसमें मैं नहीं किया, कसमें हाँ जी कसम नाल या सौ रब दी आदत बनी हुई है। जो आदतन कसम खाए अपनी कसमों का अल्लाह उसका मुआखजा नहीं फरमाएगा। वलाकिन युआखिजुकुम बिमा कसबत कुलूबुकुम, जो तुम दिल से कसदन कसम खाते हो उसका तुम्हारा मुआखजा होगा। वल्लाहु गफूरुर हलीम, अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बुर्दबार है। और तलाक 2 मरतबा है जिसकी बुनियाद पर रुजू हो सकता है, यानी एक तलाक दी रुजू हो सकता है इद्दत के अंदर, दूसरी तलाक दी रुजू हो सकता है इद्दत के अंदर। फरमाया या तो रोके रखो यानी रुजू कर लो, औ तसरीहुन बेहसान, या नेकी करते हुए आज़ाद कर दो। तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं कि जो तुमने अगर तलाक दी है, जो तुमने महर दे रखा था वो उनसे लो। हाँ जी, ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है, ये अल्लाह की हदें हैं, इनको मत फलांगो। फरमाया कि अगर वो तीसरी दफ़ा तलाक दे दे, 2 तलाक़ों पर रुजू हो सकता था, अगर वो तीसरी तलाक दे दे फला तहिल्लु लहू मिन बादु, फिर इसके बाद वो औरत उसके लिए हलाल नहीं यहाँ तक कि वो दूसरी जगह शादी करे। फ़इन तल्लक़हा, अगर वो भी तलाक दे दे तो फिर ये पहला खामद और ये औरत आपस में दोबारा निकाह कर सकते हैं। हाँ, इस शर्त पर कि इन ज़न्ना अन युकीमा हुदूद अल्लाह, कि अगर उन दोनों का ख्याल हो कि अब हम अल्लाह की हदूद का ख्याल रखेंगे। खामद सोचे कि अब मैं कोई ज़्यादती नहीं करूँगा, बीवी सोचे कि मैं अपनी ज़बान बंद रखूँगी, अगर ये अल्लाह की हदूद का ख्याल रखते हैं तो ये दोबारा निकाह कर सकते हैं। ये अल्लाह की हदें हैं, इन्हें मत फलांगो। फरमाया जब तुम औरतों को तलाक दे दो और वो इद्दत पूरी करने वाली हों तो या तो उन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या उन्हें अच्छे तरीके से आज़ाद कर दो। तंग करने के लिए मत रोको कि मैं अब इसको सीधा करूँगा, यानी रुजू करके फिर उसको तंग करने के लिए मत रोको। लितातदू, ताकि तुम ज़्यादती करो, ऐसा मत करो। जो ऐसा करेगा वो अपने आप पर जुल्म करता है। अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनाओ, अल्लाह की नेमतों को याद रखो जो उसने तुम पर की हैं और जो उसने तुम पर किताब और ये हिकमत दानाई अल्लाह के नबी की बातें तुम्हारे लिए अल्लाह ने भेजी हैं। याइज़ुकुम बिही, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है कि तुम इनकी कदर करो, अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनाओ। और औरतें माएँ अपनी औलाद को 2 साल तक दूध पिलाएं, ये उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहती हो, यानी 2 साल मुद्दत है दूध पिलाने की, तो वो 2 साल तक दूध पिलाएं। और जब वो दूध पिला रही हों तो लड़के के जो वालिद है उसके ज़िम्मे है उन औरतों की जो दूध पिला रही हैं, उन औरतों की खाना पीना और उनके कपड़े वगैरह का एहतमाम उनके ज़िम्मे है। और वो जो जिनके खामद फौत हो जाएं और जो फौत हो जाएं और अब बीवियां छोड़ें तो उन्हें चाहिए उनकी बीवियों को कि वो 4 महीने और 10 दिन तक अपने आप को रोके रखें। और फरमाया नमाज़ों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के सामने फरमाबरदार होकर खड़े हो जाओ। और आखिर में फरमाया कि वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम, जो तुम में से फौत हों वो यज़रून अज़वाजन, अगर वो बीवियां छोड़ के गए हैं उनके ज़िम्मे है कि वो अपने वरसा को ये वसीयत करके जाएं अपनी बीवियों के बारे में कि मताअन इलल हौल, 1 साल तक उन्हें गैर इखराज उन्हें ना निकाला जाए, यानी वो इसी घर में रहें 1 साल तक। फ़इन खरजना, फिर अगर वो खुद निकलना चाहें
فلا جناح علیکم، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے بارے میں وہ فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ حق ہے متقین پر۔ اور جن کو طلاق دیتے ہو تو کچھ فائدہ ضرور پہنچایا کرو، یعنی طلاق دینے سے عورت کی حیثیت خراب ہو جاتی ہے متعلقہ ہو کر، تو اس لیے کچھ دنیا داری کا یعنی کچھ مال دے کر انہیں فائدہ پہنچایا کرو۔ یا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا زیادہ کر کے اسے عطا کر دے گا۔ اللہ جب بھی چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے اور کم کر دیتا ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔